الحمدللہ الذی انعمنا باکمل الدین والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے ہم کو دین کامل عطا فرمایا ہے۔ اس دین کامل میں ہر طرح کی صورتحال کے لیے مفصل اور واضح احکام موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کو کسی بھی صورتحال کا سامنا پیش آتا ہے تو ہمارا دین ہر قسم کی صورتحال میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ رہنمائی صراحتاً قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہو، اور چاہے پھر وہ رہنمائی ائمہ مجتہدین کی اجتہادات اور فقہا و محدثین کی تفصیلات کے ذریعے ہو، لیکن بہرحال ہر صورتحال کے متعلق رہنمائی دین اسلام کا امتیاز ہے۔ اللہ جل شانہ کا مبارک ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ یہاں کے تمام اہل ایمان مسلمانوں کے سامنے ہے کہ بے شمار ہمارے بھائی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بے شمار ہمارے بھائی روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے گویا کہ انتشار کی سی صورتحال ہے۔ اس انتشار کی صورتحال میں اس وقت ضرورت محسوس ہوئی اور بے شمار بھائیوں کا تقاضا اور برمحل تقاضا ہوا کہ یہاں کے اپنی ایمان والے بھائیوں کی خدمت میں اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کی گزارشات پیش کی جائیں۔ حضرات، پہلی بات بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے جو آج ہی پیش آئی ہو کہ شعبان کی 30 تاریخ کو شک پیدا ہو گیا، آج 30 تاریخ ہے یا یکم رمضان المبارک ہے، آج روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے۔ تاریخ میں بے شمار موقعوں پر یہ صورتحال سامنے آتی رہی ہے اور اس صورتحال کے پیش آنے پر انتشار کبھی نہیں ہوا۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس طرح کے حالات پیش آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس دن روزہ رکھنے نہ رکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ایسی احادیث ملتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے متصل بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس وقت بھی اس طرح کی صورتحال پیش آتی رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گورنر تھے، ان کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خاص شاگرد ابو قریب کسی ضرورت کی بنا پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ملک شام میں روزہ کب رکھا گیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ فلاں دن یعنی جمعے کے دن شام کو چاند نظر آیا تھا اور سنیچر کے دن صبح روزہ رکھا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تو چاند نظر نہیں آیا تھا، اس لیے ہم نے یہاں روزہ سنیچر کے دن نہیں بلکہ اتوار کے دن رکھا ہے۔ حضرت ابو قریب نے سوال کیا کہ حضرت کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے تمام لوگوں کی گواہی آپ کے نظیر معتبر نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ نہیں فرمایا کہ ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ یہ کس حکم کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہاں اگر چاند نظر آ گیا تو وہاں کے لوگ روزہ رکھیں، یہاں چاند نظر نہیں آئے تو یہاں ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ وہ بھی دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ 30 تاریخ کو دو رائے ہو جائیں، شک پیدا ہو جائے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارے بھائی پریشان ہیں، انتشار کا شکار ہیں اور بحثیں ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو اس طرح کی گفتگو سے بھی مطعون کر رہے ہوں جو نامناسب ہے۔ تو اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے ذہنوں سے بات نکال دیں، یہ انتشار کا معاملہ ختم کر دیں اور
जिसने रोजा रखा ये नहीं कहा जाएगा कि उसने बिल्कुल गलत किया, कोई गुनाह किया, और जिसने रोजा नहीं रखा उसको भी नहीं कहा जाएगा कि इसने कोई गलत किया, कोई गुनाह किया। इस मौके पर मैं खास तौर पर दरख्वास्त अर्ज करना चाहूंगा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात एक अहम तरीन काम के लिए रवाना फरमाई, और चूंकि मंशा ये था कि ये सहाबा बड़ी तेजी के साथ उस जगह पर पहुंच जाएं, तो और इसलिए आपने हुक्म फरमाया कि तुम फला जगह बनो कुरैजा के मकाम पर पहुंच जाओ और रास्ते में असर की नमाज भी नहीं पढ़ना। सहाबा रवाना हो गए तो रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया। अब कुछ सहाबा कहने लगे कि भाई अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने हमको मना किया है रास्ते में असर की नमाज नहीं पढ़ना, इसलिए हम तो नहीं पढ़ेंगे, चाहे कज़ा हो जाए हम वहीं पहुंच करके पढ़ेंगे। और दूसरे सहाबा ने कुछ सहाबा ने और सोचा कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम का मंशा यह था कि हम जल्दी चलें, हमारा मंशा ये नहीं था कि कुरैजा पहुंचकर ही असर की नमाज पढ़ें चाहे कज़ा हो जाए। तो कुछ सहाबा ने कज़ा से बचने के लिए रास्ते में असर की नमाज पढ़ी, और कुछ सहाबा ने अल्लाह के नबी के हुक्म मुबारक के अल्फाज पर अमल करने के लिए कहा कि चाहे कज़ा हो जाए मगर हम तो कुरैजा में जाकर ही पढ़ेंगे। चुनाचे कुछ सहाबा ने रास्ते में असर की नमाज पढ़ी, वक्त पर पढ़ी, कज़ा नहीं होने दी। कुछ सहाबा ने कुरैजा में जाकर के असर की नमाज पढ़ी। तो जिसके बाद जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने दोनों की बात सुनी, तो आपने किसी को भी नकीर नहीं फरमाई, किसी को बुरा भला नहीं कहा कि तुमने गलत किया, उन्होंने सही किया। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, फलम युअन्निफ अहदन, किसी एक को भी आपने मतून नहीं किया। उन्होंने भी मनशा रसूल पर अमल किया है कि हुजूर चाहते थे जल्द से जल्द वहां पहुंच जाएं, और इन्होंने भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के मुबारक अल्फाज पर अमल किया, जाहिरी अल्फाज पर जो आपका अल्फाज जो आपने इरशाद फरमाए तो पर अमल किया। तो गरज ये कि कभी किसी मसले में दो राय हो सकती हैं, उस वक्त इंतशार के बजाय ठंडे दिल से मसले को समझना होता है और ठंडे दिल से मसले पर अमल करना होता है। यहां आज के दिन के मुतालिक जो पूरे मुआशरे में सवाल है कि आज का दिन रमजान का है या शाबान की 30 तारीख है। हमारे बेशुमार उलमा और अहले इल्म ने तहरीरन भी और जबानी भी ऐलान कर दिया कि आज रोजा नहीं है, आज 30 तारीख का 30 शाबान है। और बेशुमार हमारे ही उलमा ने हमारे पड़ोस के रोयत हिलाल के ऐलान के बाद यह ऐलान कर दिया कि यहां आज रमजान का पहला दिन है, यह शाबान नहीं है, लिहाजा रोजा रखा जाए। इसके माना यह है कि आज का दिन यौम शक बन गया। हमारी कश्मीर की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहां के साल के अक्सर महीनों में मतलब अबरालूद रहता है, चांद नजर नहीं आता है, और इसलिए हम यहां के तमाम मुसलमान मजबूर हैं कि वो दाएं और बाएं के इलाकों में रोयत हिलाल की बुनियाद पर अपने लिए रमजान के होने का और ईद के होने का फैसला करें। चुनांचे आज तक का मामूल यहां यही है कि जब चांद यहां नजर नहीं आता और मतला अबर आलूद होता है, तो इस मतला अबर आलूद होने की वजह से दाएं और बाएं के इलाकों की रोयत हिलाल जब ऐलान करती है तो उसी मुताबिक यहां के मुसलमान अमल करते आए हैं। यह अमल बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई इश्तिबाह नहीं। और उसके बाद फिर यह तो जोग्राफियाई खित्ते का मसला है कि यहां की जो लोकेशन है कश्मीर के साथ जो जोग्राफियाई कुर्ब और नजदीकी है, वो चूंकि उस इलाके को है जहां के रोयत हिलाल कमेटी ने इज्तिमाई तौर पर मुतफका तौर पर ऐलान किया कि यहां चांद नजर आ गया है, लिहाजा यहां के जिन भाइयों ने उस रोयत हिलाल कमेटी के फैसले को अपने ऊपर नाफिज करके यहां रोजा रखा है, उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने सही किया। इस वजह से कि आज तक का अमल तो यही था कि हम वहां की रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान पर यहां रोजा रखा करते थे, और ये इस वजह से कि जोग्राफियाई तौर पर ये उस इलाके के बिल्कुल करीब है, लिहाजा उनका रोजा बिल्कुल दुरुस्त है, कोई इसमें मुज़ायका नहीं, कोई हर्ज नहीं है। जिन भाइयों ने रोजा नहीं रखा उन भाइयों की बुनियाद यह है कि यहां के जैसा कि जनाब मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ने ऐलान किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी चांद के नजर आने की इत्तला नहीं मिली है, और चूंकि रोजा रखने का हुक्म चांद के देखने पर है, जब चांद के नजर आने की इत्तला कहीं नहीं रखी गई है, लिहाजा और इसके साथ ही बाकी बेशुमार इलाकों में, दिल्ली में, मुरादाबाद में, बिहार में, गुजरात में और उस तरह के दूसरे तमाम इलाकों में कहीं भी चांद नजर नहीं आया, तो गोया उस इलाके का चांद नजर न आना मजीद तायीद है। लिहाजा यहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब यहां रोजा 30 तारीख को नहीं होगा, बल्कि रोजा होगा
जुमे के दिन पहला रोजा होगा। जिन भाइयों ने उस पर अमल किया है उन्होंने भी कोई गलत नहीं किया, उनका अमल भी अपनी जगह दुरुस्त है। अब इसका फैसला, अच्छा, हमारी हदीस की किताबों में इस सिलसिले में तफसीलात क्या हैं वो तो अवाम के सामने बयान करने की चीज नहीं, वो अहले इल्म के लिए है। लेकिन इतनी बात अवाम की खिदमत में अर्ज है कि इसमें तो हजरात साहबा भी दो राय हुई है और वो तो हदीस की किताबों में मौजूद हैं कि यौम शक, जिसमें शक हो जाए कि आज रमजान है या नहीं है, इसको कहते हैं यौम शक, शक वाला दिन। इस शक वाले दिन में रोजा रखना है या नहीं रखना है। कुछ साहबा कहते हैं रोजा रखना है, कुछ साहबा कहते हैं रोजा नहीं रखना है। कुछ साहबा ने एक ही मौके पर रोजा रखा और दूसरे साहबा ने रोजा नहीं रखा। और जो अइम्मा अरबा है, हजरात फुक़हा किराम, अइम्मा अरबा की राय भी इसमें सिलसिले में मुख्तलिफ हैं। कहीं दो इमाम एक तरफ हैं, दो इमाम दूसरी तरफ हैं। इसके माना यह है कि मसला रहा है हमेशा से और इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की आज भी हमें कुव्वत पैदा करनी चाहिए और हमेशा से रहा है। तो यहां इस वक्त उलमा के लिए तो दरख्वास्त ये है कि अगर उनको इल्मी तौर पर इस मसले को समझने की जरूरत है, वो अहले इल्म जानते ही होंगे, फिर भी हदीस की किताबों में जहां जहां ये बहस आती है वहां वहां उसका मुताला करें। मसलन तिरमिज़ी शरीफ में रोजे के बाब में पूरा, रोजे के चैप्टर में पूरा एक बाब मौजूद है, बाब मा जा फी कराहियत सौम यौम शक। इसी तरह से बुखारी शरीफ की शुरुआत में जिसमें उम्दतुल कारी और फतुल बारी, उसमें बहुत तफसीलात के साथ मौजूद हैं और उन साहबा के अस्माए मुबारका भी दर्ज हैं, जिसमें हजरत उमर, हजरत अली, हजरत आयशा, हजरत अबू हुरैरा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और इस तरह के बड़े बड़े साहबा हैं जिनके राय उसमें मुख्तलिफ अंदाज से नकल हुई हैं, उसका मुताला करें। और इसी तरह से अलाउस सुनन जो हदीस और फिक़ह का एक बेहतरीन मजमुआ है उसमें, और इसके अलावा बेशुमार हदीस और फिक़ह की किताबों में तफसीलात मौजूद हैं जो अहले इल्म के लिए है। अवाम की खिदमत में दरख्वास्त ये है कि आप हजरात बिल्कुल मुतमईन रहें। जिन भाइयों ने रोजा रखा है उनका रोजा सही, जिन भाइयों ने रोजा नहीं रखा है उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। रमजान के आखिर तक फैसला हो जाएगा कि ये जो रोजा था या रमजान का था या नहीं। अगर रमजान के आखिर में फैसला हो गया कि ये जो रोजा था ये सही हुआ है और वाकईतन रमजान था, तो जिन भाइयों ने रोजा नहीं रखा होगा वो इस एक रोजे की कज़ा रमजान के बाद करेंगे। और अगर ये फैसला हो गया कि नहीं साहब ये जो रोजा था ये रोजा असल में नहीं था, रमजान नहीं था और ये 30 शाबान थी, तो जिन भाइयों ने रोजा रखा है उनका ये रोजा नफली रोजा शुमार होगा, कोई गुनाह नहीं होगा। ये मुख्तसर से गुफ्तगू उम्मीद है कि हमारे तमाम भाइयों के लिए तशफ़ी का जरिया होगी। और इस वक्त जो खुद अहल इल्म में और उलमा में और हज़रात मुफ्तियान किराम में दो राय हो गई हैं, इन दो रायों का महमल भी वाज़ेह हो गया और उसमें न दूसरे को मतून करने का मामला है, न तानो तशनी का मामला है और न किसी को यह कहने की जरूरत है कि तुमने जुर्म किया लिहाजा तौबा करो और तुमने गलत कहा लिहाजा रुजू करो। दोनों तरफ की सूरत हाल में दलाइल और कराइन मौजूद हैं। जब दलाइल और कराइन मौजूद हैं और हमारी इस्लामी तारीख में इस तरह के बेशुमार वाक़यात पाए गए, हज़रात सहाबा किराम के मुबारक दौर में, ताबईन के दौर में, फ़ुक़हा के दौर में और खुद यहाँ कश्मीर की कदीम तारीख में, जो यहाँ की इस्लामी वो तारीख की जिसमें यहाँ बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े फ़ुक़हा थे, जैसे शाहबीर दौरे हुकूमत में और शाहबीर दौरे हुकूमत के बाद के दौरे हुकूमतों में जो बड़े बड़े फ़ुक़हा उस जमाने में भी यहाँ इस तरह की सूरत हाल रही है। इसलिए कि जब यहाँ बादल हुआ करते हैं और खास तौर पर सर्दियों का सर्द मौसम होता है और बर्फबारियां होती हैं, तो उस वक्त यहाँ चांद नजर नहीं आता था। तो पहाड़ी इलाकों में कभी कभी कहा जाता था चांद नजर आ गया, जो बहुत बुलंदियों पर हैं, और निचले इलाकों में अबरालूद आसमान वाले चांद नजर नहीं देख पाते थे। तो एक जगह नीचे वाले लोग जो हैं वो 30 शाबान पूरा करते थे, फिर अगले दिन रोजा रखते थे और जिन लोगों के चांद नजर आता था उनको बताया जाता था कि चूंकि आप लोगों ने चांद देख लिया आप लोग रोजा रख लें। यही मामला ईद के मौके पर हुआ करता था। आज चूंकि फलकियात का दौर है, मीडिया का दौर है, सारी दुनिया जो है वो सिमट गई है, खबरें जो है वो आनन फानन पूरे आलम में फैल जाती हैं, इसलिए इंतशार की सूरत हाल पैदा होती है। इस सिलसिले में एक दरख्वास्त में और करना चाहूंगा वो ये कि हमारे वो भाई जो इस तरह के मामला में तबसरा करने के मिजाज रखते हैं, कमेंट्स करने के मिजाज रखते हैं, तो याद रखना चाहिए कि तबसरा और कमेंट्स करने में भी बहुत एतदाल जरूरी है। खास तौर पर जिस फील्ड के हम माहिर नहीं हैं उस फील्ड की में दखल अंदाजी करके उस पर तबसरे करना और नामुनासिब जुमले कसना या मजाक उड़ाना, यह हरगिज एक ईमान वाले और शरीफ इंसान की शायान शानदही है। हाँ, मुनासिब तजवीज देने में कोई मुजायका नहीं, मुनासिब राय देने में कोई मुजायका नहीं है, कोई मालूमात हो उस मालूमात को पेश करने में शेयर करने में कोई मुजायका नहीं, लेकिन ताना देना,
तंज करना या इसी तरह से इशारों किनायों में जहालत का ताना देना या उलमा को या दूसरे तमाम हजरात को या किसी फर्द वाहिद को मतून करना इस्लामी मिजाज नहीं है, इसे परहेज करना चाहिए। वैसे भी किसी इंसान के मुतालिक जब कोई राय कायम करनी हो तो राय कायम करने से पहले बहुत मालूमात की जरूरत है। ऐसा न हो कि हम किसी इंसान के मुतालिक कोई राय कायम करें और जुबान से कोई जुमला बोल दें और हकीकत हाल वो न हो, तो गोया एक मुसलमान की इज्जत रेजी होगी और उसके बाद फिर हो सकता है क़यामत के दिन मुआवजा होगा कि इस मुसलमान के मुतालिक तुमने बदजनी क्यों की और इस मुसलमान के मुतालिक तुमने गलत जुबानी क्यों की है। और हम अपनी जुबान के कलिमात का जवाब देने के भी उनके मुकल्लफ होंगे। अल्लाह जल्ल शानो कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। वो दिन याद रखना जिस दिन तुम्हारी जुबानें गवाही देंगी, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे जो कुछ तुमने किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में जो बहुत ही आजाना है, इस मुख्तसर गुफ्तगू में हमारे अक्सर भाइयों की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जो हजरात रोजे से हैं वो रोजे पर अपने कायम रहें, जिन हजरात ने रोजा नहीं रखा है वो बिल्कुल किसी इंतशार का शिकार न हो। रमजान के आखिर तक फैसला हो जाएगा कि रमजान मुबारक का आगाज जुमेरात को हुआ है या जुमे को हुआ है। अगर साबित हो गया जुमेरात को रमजान मुबारक का आगाज हुआ था तो जिन भाइयों ने रोजा नहीं रखा है वो इस एक दिन के कज़ा रमजान के बाद करेंगे। और अगर साबित हो गया कि रमजान मुबारक का आगाज जुमे के दिन हुआ है तो फिर जिन भाइयों ने आज रोजा रखा उनका ये रोजा नफली रोजा शुमार होगा। इस वक्त पूरे खित्ते की सूरत हाल ये है कि जम्मू से लेकर के केरला तक इस पूरे खित्ते में कहीं भी रोजा नहीं है। और दूसरी तरफ से सूरत हाल ये है कि लाहौर से लेकर के कराची और फाटा तक पूरे खित्ते में लोग रोजेदार हैं और हम बीच में हैं। तो हमारे लिए दोनों तरफ की सूरत हाल सामने है, लिहाजा इसमें न इंतशार का शिकार होने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत है और न किसी को मतून करने की जरूरत है। अल्लाह ताला शानहू इस गुफ्तगू को हम सब के लिए मुफीद बनाए। मैं आखिर में फिर वही कहना चाहूंगा कि हमारा दीन इस्लाम दीन हक है और हर तरह की सूरत हाल के लिए मुफस्सल अहकाम मौजूद हैं। इस सूरत हाल के लिए हमारे दीन की किताबों में जो तफसीलात हैं उनका बहुत मुख्तसर खुलासा मैंने अर्ज किया। तफसीलात अहले इल्म दलाइल के साथ समझते भी हैं, बयान भी करते हैं। अल्लाह करे हम दीन हक पर कायम रहें, साबित कदम रहें, हमको फहम सलीम नसीब हो, इल्म कामिल अता हो, अमल सालिह की तौफीक नसीब हो और दीन समझने और समझाने में हर खता से अल्लाह हम से हम हर एक की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या